दूसरा हमारा जी कि हमारी इंडस्ट्री पे जो इस टाइम तलवार लटक रही है एमडीआर की, वो चाहे कोई छोटा एक्सपोर्टर है कोई बड़ा एक्सपोर्टर है, हर किसी को उसका सामना करना पड़ेगा। और कुछ अरसे से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो चुकी थी। इंडस्ट्री में हमारे बहुत ज्यादा इस्तराब भी पाया जाता था, बहुत ज्यादा तशवीश भी थी कि इस सिलसिले में कुछ हल निकाला जाए, क्योंकि आज से पहले तक सिर्फ पाकिस्तान में एक नोटिफाइंग बॉडी थी और हमारे बहुत सारे मेंबर उनके बहुत ज्यादा अखराजात और बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस की वजह से बहुत परेशान थे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे एमडीआर की कमेटी के चेयरमैन और हमारे एक्स वाइस चेयरमैन जमील अहमद खान साहब का, कि वो पिछले 1 साल से अनथक कोशिश कर रहे थे कि वो एक नोटिफाइंग बॉडी सियालकोट में लेके आए, पाकिस्तान में लेके आए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उस नोटिफाइंग बॉडी की लॉन्च सर्जिकल, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस इंटरटेक के आने से ना सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए एक बड़ी अच्छी खबर साबित होगी, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदेमंद होगा, बल्कि ये एक म्यूचुअल फायदा होगा। इंटरटेक को भी इससे फायदा होगा और सर्जिकल एसोसिएशन के मेंबर्स को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं अब आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। मैं अपने एमडीआर कमेटी के चेयरमैन जमील अहमद खान साहब से कहूंगा कि वो जिसके बारे में मेंबर्स को बताएं। बहुत शुक्रिया। To top 3 in the business in the world. Gulf region में we are at number 1 in terms of number of certificates and presence. 130 odd countries के अंदर already काम कर रहे हैं. Pakistan में भी we were operating since 1997, but it was primarily into inspections and testing. So as such management system auditing का बहुत ज़्यादा business हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया. Now, since last 1.5 and 2 years, we started our shift towards management system auditing. Globally, the present थी, but पाकिस्तान में इसको एक तरह से दोबारा launch किया हम लोगों ने. और thankfully, it has been working very well. I'll just walk you through a bit of the introduction of Intertech and the Pakistan team as premises. हमारे offices हैं सियालकोट और फैसलाबाद में. We also have team with us. Thomas Edison was the founder of Intertech, one of the world's renowned engineers. बल्ब इजाद किया था इसने और साथ Intertech भी इजाद की थी. So 1885 was the year when it was founded. Audits अब तक हम लोग conduct कर चुके हैं in 100+ countries, and we have more than 1,000 labs and offices all across the globe. थोड़ी सी brief history मैंने रखी थी, but इसको मैं quickly skip करता हूँ. So 1885 में start है. और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज का मर्जर है. Those who have been in the ISO certification for a long time now would remember Moody International. पाकिस्तान में ISO certification उन्होंने start की थी. Moody is now part of Intertech as well. So Moody was merged into Intertech in 2011 और इसी तरह से वो एक certification body थे. So we have been merging a lot of companies since 1885 onwards. 2017 में we rebranded Intertech और Inchcape Testing Services. Business assurance में भी we were the first company to register as ISO registrar in the US. We were one of the first 3 companies to be serving ISO certificates in Canada. Over a period of time, again with incorporating multiple companies, हम लोग अपना portfolio increase करते रहे हैं. पाकिस्तान में जो Intertech है, that is not a franchise business. So we are part of Intertech UK. Intertech की जो parent company है Intertech Group, public limited company. Intertech Pakistan is also owned by them. पाकिस्तान में हम ये बहुत सारी business domains में already काम कर रहे हैं. Agri, food, oil and gas, chemicals, government testing service, tuition, others. We wish to serve the testing, inspection and certification industry, जिसमें हमने assurance add किया है. Overall risk management of the clients as part of our service. We want to make sure that whatever you are doing is producing quality and you to be a part of us as well. Again, not to brag about it, but I mean, the last year we were rated as the top auditing company in the world with $250 billion business in ATIC with presence in 100+ countries.
हायरार्की का स्ट्रक्चर पाकिस्तान में भी और जो रीजनल है मैं वो भी आपको बता देता हूँ. Our global team for business assurance is run by Kellen Moldovan. He is in the US. Regional जो हमारी मैनेजमेंट है उसमें there is thankfully a Pakistani business director. He was head of certification business in Saudi first and now he's regional. Iqbal Khan. पाकिस्तान का business जो है auditing और training का I lead that. और उसमें हमारे पास पाकिस्तान में 4 different subdivisions हैं. We have a management business जो social auditing, social compliance auditing है. वो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं. More than 100 audits per month हम उसमें serve करते हैं. फिर हमारे पास जो सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग की टीम है वो भी ऐड हो. फूड सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन ये हम सर्व कर रहे हैं. Usman Alvi is with us. Usman is the only sustainability auditor in the region for all social auditing bodies combined. So sustainability के approved auditor हैं. सईद हमारे साथ हैं. Food safety की टीम में है. Asim leads our sales team in Pakistan. Farooq लाहौर में operations को head करते हैं. I didn't want to put more emphasis on it, but just a comparison of last 1 year, we have, mashallah, grown 74% in revenue in the last 1 year. We've grown about 3 times in the headcount as well in the last 1 year. So we are here to stay, and hopefully, inshallah, we'll be able to serve you well in that regard too. Usman, if you could brief on the services, please. क्या सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं? सो मेनली वेरिफिकेशन हम आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं. कंसीडरिंग द करंट सिनेरियो, ग्लोबल वार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी इन सप्लाई चेन, ट्रेसेबिलिटी ऑफ मटेरियल, वी हैव आल्सो सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल ऑफिसेज एज वेल. 2-3 मेजर जो सर्टिफिकेशन स्कीम्स हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें हमारे पास ISO 14064 that is for the greenhouse gas emissions inventories, calculations or इनकी verifications. Then we have ISSC Plus and ISSC EU, that is International Sustainability and Carbon Certification, that is based on European Union requirements. और currently लोग भी familiar हैं कि जो भी last couple of days से कुछ कैलिफोर्निया फायर और दूसरे इश्यूज हैं, तो कार्बन एमिशंस के ऊपर, कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा चूँकि फोकस है इंडस्ट्री का और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिंजेंट होती चली जा रही है. स्पेशली वी आर सपोज टू एक्सपोर्ट समथिंग टू यूरोपियन रीजन, तो यूरोप की रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिंजेंट होती चली जा रही हैं. तो ISSC सर्टिफिकेशंस और कार्बन न्यूट्रलिटी, क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म्स, कार्बन क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म्स, तो ये तमाम वो सर्विसेज होंगी जो कि जहाँ पे आपको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है. Then lastly, the Intertech Academy, we have approved tutors for various ISO non-ISO standards जो कि 1.5 years में हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करते हुए अभी हम more than 100 courses अनाउंस कर चुके हुए हैं और कंडक्ट भी कर चुके हैं लास्ट 1 year. Both physical courses or vendor sessions with the help of a global team or also from local resources. Thank you, Usman. With your 5-10 minutes on that. के देता हूँ. सबसे पहले तो आप सबको वार्मली वेलकम इस सेशन पे और थैंक्स टू सिमाप, जमील साहब, जिशान, तारिक साहब, यूसुफ बाजवा साहब, सब लोगों ने जिन्होंने एफर्ट की और हम लोगों को यहाँ पे मदऊ किया ताकि हम अपना मैसेज जो है वो आप तक पहुँचा सकें और इस इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर हम कुछ बैठ के डिस्कशन कर सकें. तो एज ए नोटिफाइड बॉडी, जैसे कि हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि मेडिकल डिवाइसेस में हम लोग क्या क्या ऑफरिंग दे रहे हैं. मेडिकल डिवाइसेस से मुराद तमाम जुबान में देखें तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री है हमारी. तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को हम लोग ISO 13485 ऑफर कर रहे हैं. ISO 13485 थ्रू मल्टीपल एक्रेडिटेशंस हैं. यूकैस है हमारे पास, स्वीडन की एक्रेडिटेशन है, स्वेडेक है, USA की एक्रेडिटेशन SCC है और इंडियन एक्रेडिटेशन है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर ऑब्वियसली यूकैस है. यूकैस के साथ हम लोग ISO 13485 कर रहे हैं. उसके बाद हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सर्टिफिकेशन सर्विसेज हैं, मेडिकल डिवाइसेस रेगुलेशन 2017-745, तो MDR जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, MDR की सर्टिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं. हम लोगों ने कुछ 1 महीना पहले एक डिस्कशन हुई थी हमारी, पहले भी इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन हुआ था, लेकिन अभी हम फुली ऑपरेशनल हैं अपनी
अभी हम लोग फुली ऑपरेशनल हैं अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए इंडस्ट्री में। तो मेडिकल डिवाइसेस ISO 13485 and secondly on MDR is it working? एक्चुअली थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के लिए मैं बता दूं, उसका रीज़न हम लोग कनेक्ट करना चाह रहे थे। हमारे एक एक्सपर्ट है, मेडिकल डिवाइस एक्सपर्ट सलमान राशिद इकबाल, जो मोस्टली इंडस्ट्री फेमिलियर है जिनसे, उनको ऑनलाइन लेना चाह रहे थे, जिसमें थोड़ी सी तकनीकी मसाइल आ रहे हैं। तो उस वजह से आपसे माजरत कि आपको थोड़ा सा उसमें वेट करना पड़ रहा है। मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन जो है MDR, उसमें हम लोग हमारा नोटिफाइड बॉडी नंबर है 2862 और नोटिफाइड बॉडी इंटरटेक as a notified body is already doing wonderful things in globally. और पाकिस्तान में अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह we can say that we have started our operations in Pakistan for medical device regulation. और ग्लोबली हम लोग ऑलरेडी 100+ सर्टिफिकेट्स इशू कर चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे 2028 नज़दीक आता जाएगा, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करते जाएंगे। तो उसमें इस तरह के हम लोग भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे कि सियालकोट से एज सुन एज मच एज पॉसिबल सर्टिफिकेट्स हम लोग MDR पे कंट्रीब्यूट करें ऑन इंटरटेक नोटिफाइड बॉडी 2862। इंटरटेक नोटिफाइड बॉडी का हेड ऑफिस स्वीडन में है, स्टॉकहोम में, और हम लोग इसके लिए आपको डेडिकेटेड सर्विसेज पाकिस्तान से प्रोवाइड कर रहे होंगे। आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कशंस भी कर रहे होंगे। सेकेंडली इसके बाद हमारी एक मेन प्रोडक्ट है MD SAP मेडिकल डिवाइस सिंगल ऑडिट प्रोग्राम, जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। 5 रीजन्स में एक्सेप्टेंस है इसकी। US FDA इसको एक्सेप्ट करता है, इसको ऑस्ट्रेलिया TGA एक्सेप्ट करता है, जापान एक्सेप्ट करता है, हेल्थ कनाडा एक्सेप्ट करता है, और ब्राज़ील में अनवीज़ा जो है इसको एक्सेप्ट कर रहा था। IMDRF के रेगुलेटर्स ने मिलकर ये मेडिकल डिवाइस सिंगल ऑडिट प्रोग्राम बनाया था। मेंशन किया कि इसमें नोटिफाइड बॉडी कुछ नहीं कर सकती है। ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से लॉ था, रेगुलेशन थी 603 2023 607 2023, जिसमें क्लियरली मेंशन था कि 26 सितंबर 2024 तक जो लोग ट्रेन पे चढ़ गए उनको एक्सटेंशन लेटर मिल जाएगा, जिनकी ट्रेन छूट गई उनको एक्सटेंशन लेटर नहीं मिल सकेगा। तो इसमें नोटिफाइड बॉडी कुछ नहीं कर सकती है। कल को अब गॉड नोस के कल को कोई अगर अमेंडमेंट आ जाती है रेगुलेशन में, या यूरोपियन यूनियन को इसमें अमेंडमेंट हमें सारी नोटिफाइड बॉडीज को दे देता है, तो फिर कोई भी नोटिफाइड बॉडी आपको अकोमोडेट उसमें करने में तैयार होगी, हम इंक्लूडिंग क्वेश्चन को। तो देखें, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि MDR कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करना और ये एक बुनियादी एक रिक्वायरमेंट है। उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट, और हम अपनी तरफ से जितनी सपोर्ट हो सकेगी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेंगे ट्रेनिंग्स की मद में। हमारी यही कोशिश होगी कि सब लोग अपना एटलीस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करें। डॉक्यूमेंटेशन वो सेपरेट एक इशू है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि ये एक एक्सटर्नल इशू है, इसमें हम लोग कुछ ऐड नहीं करना चाह रहे। आई थिंक अप्लाई करते हैं आपके पास, तो ये ना हो कि वो भी एक लाइन के पीछे लग जाए। क्या आई एम वर्किंग विद SGS, तो मुझे पता है हाउ इट फील्स। ठीक है ना। तो दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका कॉस्ट, आर यू कॉस्ट इफेक्टिव? देखो, आपको लेके आने का मकसद, आपके साथ MOU साइन करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग, जो हमारे दोस्त भाई जिनको प्रॉब्लम है फाइनेंशियल, उनके लिए आप कितने बेनिफिट हो। ठीक है, मेरे से 3 सवाल। सम बिजनेस थोड़ा बहुत काम शुरू करते हैं, बट वो फ्रेंचाइज मॉडल का मतलब ये है कि 1 person इज डूइंग एवरीथिंग। वी आर नॉट अ 1 person कंपनी। हम पाकिस्तान में 97, ठीक है। आई रिपोर्ट टू समबडी, that somebody reports to somebody, going up until CEO. And the simple answer is that we are another one in the market now, which are equally as good. So we'll try to serve you as good. दूसरी बात, डेवलपमेंट प्लान की आपने बात की, मैं चेयरमैन साहब से पहले भी गुजारिश कर रहा था। दिस टीम sitting here today is with us for a year and a half now, जो सर्टिफिकेशन सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं।
इंटरटेक नोटिफाइड बॉडी पहले भी मौजूद थी, हम ये सारा काम ये सेटिंग 1.5 साल पहले भी कर सकते थे, बट हमने नहीं किया है। हमने पहले अपना ग्राउंड वर्क कंप्लीट किया है, अपना बिजनेस प्लान कंप्लीट किया है, प्रेजेंट किया है, अप्रूव करवाया है, देन वी आर डूइंग दिस, राइट। वी हैव ऑडिटर्स इन प्लेस जो इस वक्त अप्रूवल प्रोसेस में हैं, उनमें कुछ बहुत सीनियर नाम भी हैं मार्केट के और जूनियर लोग भी हैं। वी हैव एन ऑडिटर डेवलपमेंट प्लान इन प्लेस जिसमें वी आर रिक्रूटिंग फ्रेश इंजीनियर्स, फ्रेश से मुराद इंडस्ट्री में जिनका 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा, जो उन सीनियर्स के साथ मिलके बढ़ेंगे आगे। सो एज द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वुड इंक्रीज, विल इंक्रीज द कैपेसिटी। मैंने एक स्लाइड यहाँ पर दिखाई थी, वी हैव ग्रोन 3 times in headcount in last 1 year. I have the approval and I have the capacity to do that. So अगर हम expand कर सकते हैं और इतना 9001 में, why not in medical devices? So हम 1.5-2 साल का सर्टिफिकेशन का और 25 साल का सोशल ऑडिटिंग का पोर्टफोलियो एस्टैब्लिश करके इस फील्ड पर आए। वी हैव अ ग्लोबल हेल्प। मैं अगेन चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो अगर हमें पाकिस्तान में एक भी ऑडिटर नहीं मिलता, जो कि आई डाउट, बहुत सारे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, वी हैव अ रीजनेबल वर्कफोर्स ऑफ मेडिकल डिवाइस ऑडिटर्स इन द गल्फ हु आर एक्टिव ऑडिटर्स, हु कैन इजीली, इंडियन पासपोर्ट के अलावा भी बहुत सारे अरब पासपोर्ट्स के हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, so we can invite them over and start working with us here in Pakistan too. So before coming to you, we have done our groundwork and we would like to serve you to that. I'd like to stand by my words. मैंने जैसे गुजारिश की, हम फिर कोशिश करेंगे साल बाद दोबारा बैठें, and I'll take your feedback on that. I'm not here going to discuss the exact pricing model, of course, but we'll individually try to place ourselves which is competitive in the market. ये jargon use नहीं कर रहा सिर्फ, but we'll make it competitive, we'll make it mutually beneficial to you. आपको I'm sure when I commit ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि ये विन विन नहीं है, इसमें एक पार्टी विन कर रही है और दूसरी पार्टी लूज कर रही है। एक आखिरी सवाल है, वो सारी की सारी अपफ्रंट ली जाती है या वो सारी की सारी वन टाइम कॉस्ट है? इट्स नॉट ओनली अ वन टाइम कॉस्ट, देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ दैट कॉस्ट। उन फेजेस को मजीद रिलैक्स कैसे करना है, इस पे ऑफ कोर्स काम किया जा सकता है, but there is a price for technical file review, there is a price for stage 1 audit, there is a price for stage 2, there is a price for surveillance. वो प्राइस अपने ड्यू टाइम पे ही ड्यू होती है। अब उस ड्यू को फर्दर अगर रिलैक्स, ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ एमडीआर पे उनका भी उतना ही हक है और एमडीआर कराना उनके लिए भी उतना ही जरूरी है जिस तरह किसी बड़े ब्रांड के लिए। तो अगर हम उनको को प्राइसिंग में कोई रिलैक्सेशन दे सके, उन्होंने, आपने ये तो मुझे यकीन दिलाया कि आपकी प्राइसेस काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगी, नॉट बाय अ मियर मार्जिन बट अ प्रॉपर मार्जिन के साथ। लेकिन ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्राइस प्लान भी को दे सके, उसमें सेवा भी इन्वॉल्व हो सकती है, आपको वेट करके दे सकती है उस कंपनी के लिए। अगर आप कोई प्राइसिंग में उन्हें को रिलैक्सेशन देना चाहें तो हम उसमें थोड़ा सा आपको एज अ फैसिलिटेटर रोल प्ले कर सकते हैं और उसमें जरूर आप इस पे वर्किंग कीजिएगा। Of a structured approach, there are certain things which need a hierarchical approval. So, I mean, we discussed on the MOU. I had to get it verified from a legal team. Why so? Because we have set SOPs for that. So, for the pricing model as well, if there is to be a certain relaxation, I'm sure there is one which is part of MOU as well. You will announce that. I'll give it to you. But उससे ज़्यादा further relaxation क्या हो सकती है? We'll work on that. We'll get back to you surely. Please, not to. वैसे आपको प्राइस नहीं दे सकते कि आप आज एमडीआर करवाएंगे तो ये प्राइस होगी। हमें नहीं पता आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, वो कहाँ पे फॉल करती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या क्लास है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशन में होंगे कि आपको बता दें आपकी 1000 है, उसकी 2000 है, उसकी 3000 है। ऐसे नहीं हो सकता। आप एप्लीकेशन भेजें, वो उनको रिव्यू करेंगे, आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी के अकॉर्डिंगली वो आपको प्राइस कोट करेंगे। सितंबर 24 गालबन वो गुजर गई, ठीक है, 26। अब उसके बाद नोटिफाइड बॉडी कुछ नहीं कर सकती है। बेशक एक और नोटिफाइड बॉडी भी आ जाए तो वो एक्सटेंशन लेटर इशू नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि बाइंडिंग है उनके लिए कि ईयू को वो रिप्रेजेंट करते हैं और जो लॉ उधर बनेगा ये उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। अगर किसी का एक्सटेंशन लेटर इशू नहीं हुआ, जब तक कि कोई नई चेंजिंग नहीं आई, ये कुछ नहीं कर सकते। ना तो ये कर सकते हैं, ना ही कोई और नोटिफाइड बॉडी कर सकती है। उसका आउटकम बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ या मार्च में आएगा। उसमें कुछ नई चीज आएगी। अगर उसमें जो नई चीज आएगी उसके अकॉर्डिंगली ये लोग अपना प्लान करेंगे। उससे पहले कोई भी नोटिफाइड बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती।
मीटिंग हुआ तो अब नए सिरे से सर्टिफिकेशन करवानी पड़ेगी। विल मेक श्योर कि अगर आप मैनेजमेंट कमिटमेंट है तो हम फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन अप्रूव करवा के आपकी को प्रोसेस करवाएं विद इन 6 to 7 मंथ्स। हम आपको इफ दैट इज टॉकिंग अबाउट क्लास 1 आवर, इफ दैट इज क्लास 1 आवर, तो उसको फास्ट ट्रैक करके 6 to 7 मंथ्स में आपको सर्टिफिकेशन करवाएं ताकि आप। अच्छा सर, दूसरा आपका क्वेश्चन था वो आपका अगर एचएस में जाते हैं या किसी और नोटिफाइड बॉडी में जाते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फीस है वो चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आप ट्रांसफर करते हैं एक्सटेंशन लेटर की, उसकी कोई फीस जो है ना वो चार्ज नहीं होगी। ये एमओयू हमारा इनके साथ है। अभी जो हमारी, मैंने आपको बताया जहाँ कमाल साहब के साथ एक मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल रही है और उन्होंने इसको प्रिंसिपली तो एग्री कर लिया, लेकिन मैं उस चीज को मानूंगा जो मेरे हाथ में कुछ आएगा। तो अब हमने उनसे मीटिंग की रिक्वेस्ट की हुई है और हम हर तरह का प्रेशर भी यूज कर रहे हैं। होपफुली नेक्स्ट आने वाले चंद दिनों में हमारी उनके साथ मीटिंग हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि जैसे अप्रूवल मिलेगी, PCSIR ने सारी इसकी फिजिबिलिटी हर चीज तैयार की हुई है और इमीडिएटली उस पर काम शुरू हो जाएगा। जो लैब का कंप्लीशन टाइम है वो जमील भाई आपको बता सकते हैं, क्योंकि उस पे उन्होंने सारा काम किया हुआ है। सारी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं, कौन कौन से टेस्ट मेथड हैं, सारे स्टैंडर्ड उनको प्रोवाइड किए, उन्होंने उसको स्टडी किया, टेस्ट मेथड प्रोवाइड किए, उस पर वर्किंग करते करते 1.5-2 साल गुजर गए। फिर उन्होंने एक प्रपोजल बनाया कि हमें मैन एंड मशीनरी क्या चाहिए कि हम ये सारे टेस्ट जो है पाकिस्तान में कर पाएँ। तो वो करके हमने पूरा एक प्रपोजल बनवा के ना EDF को सबमिट किया है। अब उस पे EDF पे गवर्नमेंट की तरफ से डिले है, कभी वो PCSIR की तरफ से कुछ जस्टिफिकेशन मांगते हैं, कभी हमसे मांगते हैं, कभी इधर से, लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर उसकी फंडिंग हो जाती है तो ऑलमोस्ट कोई 2 साल का पीरियड लगेगा और उस 2 साल के अंदर सारे के सारे टेस्ट जो है ना वो क्रेडिट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर कॉस्टिंग की बात करें ना, अगर तो सिर्फ 1 या 2 टेस्ट जो है ना अगर आप अमेरिका से करवाते हैं तो $40,000-50,000 में होते हैं। अगर वो यहाँ से पूरी की पूरी अगर आप टेस्टिंग करवा लेना तो पूरी की पूरी प्रोडक्ट टेस्टिंग उसकी भी कॉस्ट $10,000 नहीं आएगी अगर ये सारा कुछ पाकिस्तान में हो जाता है, और ये छोटी इंडस्ट्री जो है ना आराम से कर पाएगी। थैंक यू। लेकिन उसके बावजूद नोटिफाइड बॉडी का डिफरेंस आता है, उसकी वजह से हमें कास्ट का जो है फर्क महसूस होगा प्रैक्टिकली। मसलन एक नोटिफाइड ऐसा हुआ है, हमारे में से कुछ लोग बैठे हुए होंगे जिनकी पहली दफा एक दफा फाइल रिव्यू हुई है पुरानी नोटिफाइड बॉडी से, पहले वाली नोटिफाइड बॉडी से 4 मैंडेट के चार्जेस उन्होंने दिए, जिसमें ये देखने के लिए कि इनिशियली आपकी क्या क्या कमियां हैं। तो इस लिहाज से तो ये प्लस पॉइंट है। तो इसी तरह से हाँ, इस वक्त अगर ये बता सकते हैं तो ये आप बता सकते हैं कि आपका मैंडेट रेट क्या है और एक्सपेक्टेडली एक पीएफ के लिए रिव्यू के लिए कितना चार्जेस लगते हैं, कितना मैंडेट है, 2 चीजें आप बता सकते हैं। तीसरा ये बता दें आप, ये ज्यादा जरूरी है कि आपकी मौजूदा एसोसिएशन में हर बंदा अपनी कंपनी की डिटेल और प्रोडक्ट के साथ इनके पास आ जाए, वो एवरी वीकेंड यहाँ पे मौजूद है, बजाय कि वो एक आप फिगर सुनना चाह रहे हैं हर बंदा यार $2,000 $3,000। अब असल में बात यह है कि आपकी कंपनी का साइज क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो सारी चीजें वेरी करती हैं। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी आपको बता दें $2,000, आप खुशी से जाएं बस $2,000 में MDR हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं पॉसिबल। आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल के साथ, डेस्क मौजूद है यहाँ पे, परमानेंट है, आप आए उनके साथ बैठें, अपनी सारी डिटेल शेयर करें, अपनी प्रोडक्ट शेयर करें, क्लासिफिकेशन शेयर करें, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको डिजाइन करते हैं। ठीक है, इसमें सर्जिकल और डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम आइटम्स हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ हमें बेसिक आने का मकसद तो यही है कि हमें कोई एक्सपेक्टेड अमाउंट पता लग जाए। डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उसमें अगर 50 कैटेगरी करेंगे तो 50 डिफरेंट है, हो सकता है उसकी 10 टेक्निकल फाइलें बने या 20 टेक्निकल फाइलें बने। ठीक है, अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे हम सब डेंटल का या सर्जिकल का काम करें, अगर आप MDR की रेगुलेशन को पढ़ेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये जो हम आप सवाल उनसे पूछना चाह रहे हैं वो उसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जब रेगुलेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में जाएंगे, उस क्लासिफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करती है, उसकी क्या कॉस्ट निकलेगी। चार्ज करते हैं आपसे बहुत ज्यादा, इनके मैंडेट उनके मैंडेट में फर्क है। आप इनको एप्लीकेशन देंगे, वो कैलकुलेट करके आपको कोई महीने नहीं लगाएंगे, चंद दिनों में आपकी जो है ना उसका रिस्पांस मिल जाएगा। आप वो उनके पास कोई ऐसा फिगर नहीं है कि किसको क्या रेट देना। उसकी रीजन ये है कि जब तक आप उनके पास प्रोडक्ट की कैटेगरी, क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये सारी चीजें मौजूद नहीं होगी, वो इस पोजीशन में नहीं होगी कि आपको किसी किस्म का रेट दे सके। आई नो कि बहुत से लोग चाह रहे हैं कि बस यही बता दें इतने $1,000 इतने कम, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो
क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जब आपकी कोटेशन बनेगी और जब आप उसका मैंडेट रेट देखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा फर्क नजर आएगा। Of any, let me tell you, mandate rate की बात हम करें, audit cost की बात करें. At this point of time, we are here to introduce ourselves as an independent, internationally acceptable, equally reputable auditing body, which has a certain cost. एक सर्टन कॉस्ट है जो ऑडिटर अप्रूवल के लिए हमें बेयर करनी है, एक सर्टन कॉस्ट है जो ऑडिटर डेवलपमेंट के लिए हमें बेयर करनी है, एक सर्टन कॉस्ट है जो दुनिया में इतनी बड़ी प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए जिसका सर्टिफिकेट आप लेकर जाएं तो वो वैलिड हो, एक्सेप्टेबल हो, विजिबल हो, उसकी कॉस्ट पड़ती है। वो हम XYZ इंस्टीट्यूट से MBA करें और लम्स से MBA करें तो दोनों की डिग्री MBA की होती है, बट लम्स को आप एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों बेयर करते हैं? बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी। What we are saying is that if you feel that you have been overcharged in the previous history, will not be overcharging you, will be transparent in that. Whatever we are charging will be very transparent in that. But at this point of time, disclosing a general price for everybody, उसकी कम कैटेगराइजेशन या ज्यादा कैटेगराइजेशन में मिनिमम कॉस्ट क्या होगी या मैक्सिमम कॉस्ट कहां तक जाएगी, we are not going to debate on that. We'll discuss it one on one. If available, our person will be available here every week in person. You can reach out on emails, you can reach out on phone at all times. We'll be catering to your requests. उस questionnaire को fill करें, give it back to us by the next 10 days, 7 to 10 days, depending upon the working days in between, 7 to 10 calendar days, we'll be reaching back to you with a tentative proposal. Yes. और लास्ट बात के एक हमने फैसिलिटेशन टेस्ट टाइम कर दिया है, वो हर हफ्ते इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आएगा। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि टाइम लेके आए, क्योंकि ये पर्सनल इंडिविजुअल होगी डिस्कशन, ये पॉसिबल नहीं कि 7-8 लोग इकट्ठे डिस्कस कर रहे हैं, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। हाँ, आपके जितने क्वेश्चंस हैं वो साथ लेके आए, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। ठीक है जी। जो हमारी इंडस्ट्री की जरूरत थी वो मैं उमर के साथ बैठ के एक इन डिटेल वर्किंग की थी कि यार हमारी इंडस्ट्री की ये जरूरत है, लोग ने अपनी प्रीवियस नोटिफाइड बॉडीज के साथ हमें क्या मसाइल, ये सब चीजें बैठ के 1 to 1 हमने डिस्कस की। डिस्कस करने के बाद ये इन्होंने अपनी मैनेजमेंट से डिस्कस की, अपने बायर वाहिद से अप्रूवल ली। जब ये इस पोजीशन में हुए कि यस हम अब इस पोजीशन में हैं, भाई इस पे भी साइन कर दें, फिर हम फाइल एक्सचेंज कर दें। चेकबुक वाले करियो। हाँ सामने देखें।